Welcome students. Now in this lecture we'll be doing only two questions, but both the questions are very interesting and you all will really enjoy these questions. Okay, let's start students. It's question number 13 on the board. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Really students, when I read this question, when you all will read this question, you all feel okay, fine, a certain thing is given. But really, if we go in the depth of this question, it's like an ocean for us. Once again, two numbers are selected at random. At random, two numbers are selected without replacement. What does this mean? I'll let you know. From the first 6 positive integers. Okay. बाद में पढ़ते हैं. First 6 positive integers. My question to you all is, what are first 6 positive integers? कौन से होते हैं? Let us consider that I have a box. Pay attention here. I have a box. In that I have first 6 positive integers. Is given from the first 6 positive integers. तो कौन से होते हैं first 6 positive integers? It's very obvious. First 6 positive integers is nothing but 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 0 will not be considered. Okay. So first 6 positive integers, because 0 can neither be called as positive nor negative. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let us assume that we have tokens. It's not given in the question that I am considering that in a box I have tokens of these numbers. So 1, for example 2, 3, 4, 5 and 6. Different tokens are mixed, and tokens are nothing but the first 6 positive integers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Randomly it's given over here. Okay. So these are the numbers. Okay, now what to do? Pay attention here. Two numbers are selected at random. Okay, there is a blindfold on my eyes. I'm putting my hand inside this box and I'm removing how many numbers? Two numbers. That means I'm putting my hand inside this box and I'm removing 2 tokens without replacement. इसका मतलब क्या? Without replacement का मतलब क्या? Listen carefully. I'm explaining you all the meaning of without replacement. First time my eyes are blindfolded. I cannot see anything. I put my hand inside this box and I remove a token. It happens to be 2. Let's consider. I'm taking an example, random example. It happens to be 2. So 2 वाला token बाहर निकल गया. ठीक है. I want 2 numbers. तो जब second time में दूसरा token, दूसरा number के लिए जब हाथ डालूंगा box में, at that point this 2 is outside. I will not replace this 2 inside the box. So that's the reason इसको बोलते हैं without replacement. तो अब जो second time में हाथ डालूंगा दूसरा number चुनने के लिए, निकालने के लिए, at that time in the box I'll be having only 5 tokens. जो बचे हुए 5 है. ठीक है. So second time में हाथ डालूंगा और let's take an example कि मुझे 4 आया, तो I'll note down कि 4 आया मुझे. This is the case. Understanding? So without replacement का मतलब क्या है? जब पहले वाला नंबर निकाले तो उसको बाहर ही रखेंगे, फिर से अंदर नहीं डाल देंगे. तो जब सेकेंड टाइम में हाथ डालूंगा दूसरे नंबर के लिए, तो available choices for the second token will be 5 and not 6. This it means without replacement. That's it. Okay. Now how to write? First let me once again write here. This is 2. This was the example. I was giving you an example. 4. Okay. Now students, I want to show to you all something over here. Pay attention. Two numbers are selected at random without replacement from the 6 positive integers. We are doing a chapter probability. The basic step over here is to write the sample space. Okay, now just pay attention. The very important thing I'm doing it over here. Can I say students, it can be the case. Understand the emphasis on the word can. हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, हो सकता है कि मैं पहली बार हाथ डाला तो मुझे 1 आया. हो सकता है कि मैं हाथ डाला तो 1 आया, और जब दूसरी बार मैंने हाथ डाला तो मुझे 2 आया. इट कैन बी द केस. और इट कैन बी द केस कि जब मैंने पहली बार हाथ डाला तो मुझे 1 आया
first, and second time when I removed a number, it came to be 3. It can be the case that first time when I removed a number, it was 1, and second time when I removed, it comes to be 4. It can be the case. आएगा वो नहीं बोल रहा हूं, क्या क्या आ सकता है वो लिख रहा हूं, because now we are discussing about the sample space. It can be, I can get 1,2, मतलब पहली बार में 1 आया और दूसरी बार में 2 आया. I can get 1 and 3, पहली बार में 1, दूसरी बार में 3, पहली बार में 1, दूसरी बार में 4, पहली बार में 1 आ सकता है एंड दूसरी बार में 5 आ सकता है, पहली बार में 1 आ सकता है, दूसरी बार में 6 आ सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, नेक्स्ट, इट कैन बी द केस कि पहली बार में हाथ डाला और जो टोकन निकला, जो इंटीजर निकला, इट कैन बी 2 एंड सेकेंड टाइम में 3. 2,1 नहीं लूंगा मैं, बिकॉज 2,1 इज सेम लाइक 1,2. समझा? तो वो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है मैंने, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा. क्या क्या आ सकता है? पहली बार में 2 अगर आया और सेकेंड टाइम में अगर मुझे 1 आता है, तो मेरे नंबर्स 1 और 2 ही हुए ना, तो वो ऑलरेडी हम लोग ने ले चुके ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा. 2,4, 2,5, 2,6. हो सकता है कि आई पुट माई हैंड इनसाइड द बॉक्स, तो पहली बार में 2 आए, और हो सकता है कि सेकेंड टाइम में 6 आए. कॉमा के पहले वाला फर्स्ट टाइम हाथ डाल के जो निकाले तो जो नंबर आएगा वो है, दिखा रहे कॉमा के लेफ्ट वाला, और कॉमा के राइट पर कौन है? सेकेंड टाइम जब हाथ डाल के सेकेंड नंबर चूज करते हैं वो है. इट कैन बी द केस स्टूडेंट दैट व्हेन आई पुट माई हैंड इनसाइड द बॉक्स और फर्स्ट टाइम में जो टोकन आया वो होगा इंटीजर 3. सेकेंड टाइम मैं हाथ डाला तो आया 1, तो इट विल बी 3 and 1 विच इज ऑलरेडी डन. 1 and 3 आ चुका है. इट कैन बी द केस स्टूडेंट्स के मैंने सेकेंड टाइम में हाथ डाला तो नंबर 2 आया, तो 3 and 2 हो जाएगा, जो ऑलरेडी हो चुका है. 3 और 3 तो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज 3 एक बार है, एक बार 3 निकल गया तो सेकेंड टाइम 3 तो आ नहीं सकता है. सो इट कैन बी द केस के 3 and 4. इट कैन बी द केस दैट 3 and 5, 3, 6. सिमिलरली इट कैन बी द केस कि फर्स्ट टाइम पे हाथ डाले तो 4 आया, सेकेंड टाइम में अगर 1 आता है तो ऑलरेडी हो चुका है 1 and 4, 2 आया तो ऑलरेडी हो चुका है 2 and 4, 3 आया तो ऑलरेडी हो चुका है 3 and 4. इट कैन बी द केस 4 और 4 तो हो नहीं सकता है, बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट है 4 एक बार बाहर निकल गया तो सेकेंड टाइम के लिए 4 बचा नहीं है अंदर, तो 4, 5 आ सकता है, 4, 6 आ सकता है. ओके, एंड लास्ट 5, 4 हो चुका है, 5 हो नहीं सकता है, 5, 6. ये सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं. कॉमा के पहले वाला कौन है कि पहली टाइम में कौन सा नंबर आएगा, और कॉमा के बाद वाला सेकेंड टाइम में कौन सा नंबर आएगा. इफ यू ऑल काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. It comes to be 15. Okay, so n of s is nothing but 15. Okay, students, now pay attention over here. The way by which I'm solving this, pay attention here. The way by which I'm solving here, this is not a good method. आपने एग्जाम में ये मेथड से सॉल्व नहीं करना है, ये आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए था कि इतने सारे डब्बे बना के आपको नहीं करना है. तो टेक्निकल मेथड क्या है, आई एम इरेजिंग दिस और उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. यू ऑल शुड कॉपी दिस, बट इट्स फॉर योर रेफरेंस. एग्जाम में आप कैसे करोगे? एग्जाम में आउट ऑफ 6 इंटीजर्स आपको 2 इंटीजर्स को निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, सो इट कैन बी रिटन एज 6c2. यस, अगर कोई बच्चे को ये सी ऑपरेशन नहीं करने आता है तो फिलहाल के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट नीडेड ओवर हियर. व्हेन विल बी डूइंग द बाइनोमियल, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल हाउ टू सॉल्व दिस. वी हैव टू एक्सपांड 6 2 times up till 2 digits. Okay, up to its 2 followers. So one will be 6 itself and other will be 5. एक बार खुद 6 को लिखेंगे और सेकेंड टाइम 5 को लिखेंगे. ओनली 2 digits will come. Why? बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा था. अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो क्या लिखते? 6 into 5 into 4, 4 तक लिखते. 3 digits सीख जाते अपॉन 2 into 1. 2 ones are 2 threes are is equal to 15. This is our n of s.
सी दिस इज हाउ वी फाइंड, टेक्निकली ये आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। ये भी करोगे तो रॉन्ग नहीं मिलेगा, बट इट ऑक्यूपाइज टाइम एंड दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी डू इट। ओके, ये आपको समझाने के लिए था। नो बुक्स, नो डाइजेस्ट हैव दिस मटीरियल, दिस इज फॉर यू ऑल। ओके, नाउ हाउ टू स्टार्ट विद द सम। ये सारे कॉम्बिनेशन से जो आ सकते हैं। ओके, now see here, now I'm reading from here, all of you pay attention. Let capital X denotes the larger of the two numbers. कैपिटल X क्या डिनोट करता है? कैपिटल X क्या है हमारा? ऑलवेज हम लोग ने देखा है कैपिटल X हमारा है रैंडम वेरिएबल, डिनोट्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। तो जो दो नंबर्स, जो जोड़ी हमने निकाला है, पहला एक नंबर बाद में दूसरा नंबर, तो एक जोड़ी मिल गई नंबर्स की, एक पेयर ऑफ नंबर मिल गया। वो दो में से कैपिटल X क्या डिनोट करता है? द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। तो कौन कौन सी जोड़ी आ सकती है? ये जोड़ीज आ सकती है आपके सामने, बराबर। तो इसमें से जो लार्जर ऑफ द टू नंबर होगा वही होगा कैपिटल X के चांसेस, कैपिटल X होगा वो। तो नाउ यू टेल मी, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। नाउ यू ऑल टेल मी व्हाट कैन बी X। सो कैन आई से रैंडम वेरिएबल कैपिटल X कैन टेक व्हाट वैल्यूज। चलो यहां पे देखते हैं, अगर 1 और 2 की जोड़ी आई तो इसमें से लार्जर क्या होगा? 2। 1 और 3 में से लार्जर क्या होगा? 3। 1 और 4 में से लार्जर 4। 1 और 2 में से लार्जर क्या होगा? 2। 1 और 3 में से लार्जर क्या होगा? 3। 1 और 4 में से लार्जर क्या होगा? 4। 1 और 5 में से लार्जर क्या होगा? 5। 1 और 5 में से लार्जर 5 होगा। 1 और 6 में से लार्जर क्या होगा? 6। वो बोल रहा है कि X क्या होगा? द लार्जर ऑफ द टू। 2 और 3 में से लार्जर 3 ऑलरेडी आ गया। 2 और 4 में से लार्जर 4 ऑलरेडी आ गया। 2 और 5 में से लार्जर 5। 2 और 6 में से लार्जर 6 ऑलरेडी आ गया। सिमिलरली सब कवर हो चुका है। 1 नहीं आएगा। 1 जिसके साथ में भी आएगा तो जो सेकंड नंबर है वो दैट विल बिकम द लार्जर। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? कैपिटल X हर नंबर नहीं है, यहाँ पे 6 नंबर है, तो 1 क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज कैपिटल X क्या है कि जो जोड़ी में से जो दो नंबर है उसमें से लार्जर वाला नंबर कैपिटल X है। तो 1 जिसके साथ में भी आएगा तो सेकंड नंबर जो होगा वो लार्जर हो जाएगा, इसलिए 1 कभी भी नहीं आएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6। अंडरस्टैंडिंग? Let X denotes the larger of the two numbers. So it can be either 2, 3, 4, 5 or 6. Find E of X. मतलब expected value of X, which is the larger of the two numbers. So that means पहले मुझे probability find करना पड़ेगा 2 पे, probability find करना पड़ेगा 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। उसके बाद ही I can go for the expected value. Understanding? Okay. So let's start, students. Let's start. Okay. First one. First. When कैपिटल X क्या है? कैपिटल X आपको मन में मालूम होना चाहिए कि मैंने हाथ डाल के बॉक्स में से 2 इंटीजर्स निकाला, तो उसमें से जो लार्जर नंबर है उसको कैपिटल X बोला है क्वेश्चन में ही बोला है। X denotes the larger of the two numbers. So let capital X is equal to 2. मतलब जब मैंने 2 नंबर निकाला उसमें से मैं दोनों में से लार्जर वाला नंबर कौन सा है? 2 आया है। मतलब एक नंबर जो दूसरा नंबर आया है वो छोटा होगा 2 के, वो बट ऑब्वियसली 1 होना चाहिए, 1 होगा, ऑफ कोर्स 1 होगा, तो ही 2 लार्जर बन गया। सो ऐसे कितने यहां पे हो सकते हैं चांसेस आपके सामने, जहां पे वो बॉक्स में से, वो जोड़ी में से 2 acts as the larger one. Can I say only this one? अगर 2,3 में से 3 लार्जर हो जाएगा, 2,4 में से 4 लार्जर है, 2,5 में से 5 लार्जर है, तो 2 लार्जर कब बनेगा? जब 1 और 2 आएगा। तो एक ही ऐसी चीज है, एक ही पॉसिबल है। तो कैन आई से ये केस के लिए कि जब कैपिटल X 2 है, मतलब लार्जर नंबर 2 है, तो n ऑफ X, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कंडीशन इज हाउ मेनी? 1। एक ही ऐसा बंदा है 1,2। यस, 1,2। सो कैन आई फाइंड प्रोबेबिलिटी? आई डोंट हैव प्लेस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग हॉरिजॉन्टल। आपको एक के बाद एक करना है और बीच में लाइंस छोड़ना है, बट आई डोंट हैव प्लेस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सच थिंग्स horizontally. You have to go vertically. So probability when capital X is equal to 2 is number of favorable outcomes कितने? 1 upon total कितना है? 15. Yes, this is a first one. Next, second one. When capital X is equal to 3. पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। कैपिटल X 3 आया। कैपिटल X क्या है कि जो 2 नंबर्स चुने हैं हम लोग ने, उसमें से ग्रेटर वाला नंबर 3 है।
मतलब स्मॉलर वाला नंबर 1 आएगा, दो में से एक नंबर 1 होगा तो ही 1, और अगर दो नंबर में से एक है 1 और एक है 3 तो 3 सिलेक्ट हुआ होगा, और एक नंबर 2 होगा और एक नंबर 3 होगा तो ही 3 सिलेक्ट हुआ होगा। तो लेट्स सी कौन कौन सा होगा। इसको देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इन योर माइंड। 1,3 आया होगा तो ही 3 सिलेक्ट हुआ होगा, और 2,3 आया होगा तो ही 3 सिलेक्ट हुआ होगा। फिर भी देखो 1,3 ये अगर बॉक्स आया होगा, ये जोड़ी अगर आई होगी तो ही वी कैन से 3 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो एक ये हो गया 1, एंड 2 एंड 3 आया होगा तो ही वी कैन से 3 इज द लार्जर नंबर। बाद में 3 और 4 में तो 4 बिकम्स द लार्जर, दिस वी कैन नॉट से, सो ओनली दिस एंड दिस 2। सो नंबर ऑफ cases satisfying this condition, number n of x will be how many? 2। दो लोग ऐसे हैं, दो पॉसिबिलिटी ऐसा होने की। सो प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ x when the largest number is 3 is 2, favorable outcomes is 2। दो लोग ऐसे हो सकते हैं, दो केसेस है, अपॉन टोटल कितने हैं? 15, 2/15। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन when कैपिटल X is equal to 4। मैंने दो नंबर निकाला, मेरे पास दो नंबर हो गए, मगर वो दो नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर 4 आएगा। तो ओरली कर सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं, यहां पे मत देखो। 1 और 4 अगर आया होगा तो 4 ग्रेटर होगा। 2 और 4 अगर आया होगा कॉम्बिनेशन में, कौन सा ही पहले आया कौन सा बाद में आया वो मैटर नहीं करता है। 2 और 4 आया तो 4 ग्रेटर होगा, 3 और 4 में 4 ग्रेटर होगा, 1 और 4 में 4 ग्रेटर, 2 और 4 में 4 ग्रेटर होगा, 3 और 4 में 4 ग्रेटर होगा। 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो 5 ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 और 4, 1, 2 and 3। सो n of x, number of elements will be 3। probability when x is equal to 4 will be, the number of favorable outcomes 3 है, 3/15। yes, okay। now students, I think so अभी आप स्मार्टली कर सकते हो, अभी घड़ी घड़ी सोचने की जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू सी केयरफुली, अब मैं when x equals to 5, I'll not write when, I'll write similarly। similarly is a magical word। जब कभी आप कोई भी प्रूव में एक हैंडसम अमाउंट ऑफ चीज प्रूव कर लेते हो, बाद में एक ही बिहेवियर फॉलो होता है, तो वी कैन यूज दिस मैजिकल वर्ड सिमिलरली। तो कुछ रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली व्हेन कैपिटल X अगर 5 हो गया, व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू 5, तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग द प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी। देखो ना, पहले में क्या आया? 1/15, दूसरे में क्या आया? 2/15, फिर 3/15, तो अब क्या होगा? 4/15। यू कैन चेक, हाँ यू कैन चेक। फिफ्थ वाला, similarly when capital X is equal to 6, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर 6 है तो 1,6 भी हो सकता है, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6 भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से आप करोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, और हमारे वे में 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, प्रोबेबिलिटी विल बी 5/15। डेलिबरेटली डोंट कैंसिल दिस 15। आई नो 3 1s 3 5s होता है, बट मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो। ऑल डिनोमिनेटर्स शुड बी सेम, इट विल बी ईज आउट योर कैलकुलेशन। अगर आपने कैंसिलेशन कर दिया तो कैलकुलेशन बहुत खराब हो जाएगा आपका। दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी मिल गया। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। Now please complete this much. All of you pause the video and complete this much fast. Okay students, what I have done is I have just drawn a probability distribution table कि जब x की वैल्यू 2 है, and you all know this fact that ये जो वैल्यूज होती है ना x की, इसको स्मॉल x बोलते हैं। जब स्मॉल x की वैल्यू 2 है, जब स्मॉल x की वैल्यू 3 है, जब स्मॉल x की वैल्यू 4 है, जब स्मॉल x की वैल्यू 5 है, जब स्मॉल x की वैल्यू 6 है, तो जब स्मॉल x are the different values of this capital X random variable। ओके, सो जो छोटी छोटी अलग अलग वैल्यूज आती है ना रैंडम वेरिएबल कैपिटल X की, उसको स्मॉल x से डिनोट करते हैं। तो
नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स की वैल्यू 2 है तो 1/15, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स की वैल्यू 3 है तो 2/15, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स की वैल्यू 4 है तो 3/15, लाइक सो गाइस. तो आई हैव दिस मेड अ टेबल. आप टेबल नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा था. पूछा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है. दे हैव आस्क्ड अस फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू. ओके, सो नाउ expected value E of x, the formula is summation of xi pi, xi multiply by pi. xi मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर i की जगह पे 1 है, i इज लाइक अ काउंटर, अगर i की जगह पे 1 है तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x की क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी तो 1/15. अगर i की जगह पे 2 आया तो सेकेंड वैल्यू x की कितनी है 3 है यहाँ पे, तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/15 सेकेंड प्रोबेबिलिटी. i की जगह पे 3 अगर आया तो थर्ड वैल्यू कौन सी है x की यहाँ पे 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी. सो दिस विल बी, अगर 2 लिया 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी 1/15 समेशन है मतलब बीच में प्लस आएगा. ओके, बीच में प्लस होगा, प्लस देन 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 2/15 बीच में प्लस, देन 4 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 3/15 बीच में प्लस, देन 5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 4/15 एट द लास्ट प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी 5/15. Now don't do this cancellation. I know that's 5 1s are 5, 3s are 15 होता है. We'll keep the denominator same for the ease of our calculation, students. Okay, let's see here now. Therefore, expected value E of x is equal to, will have a common denominator 15. यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 15 1s are 15, 15 15 15 15. Okay, 2 1s are is 2 plus 3 2s are is 6 plus 4 3s are is 12 plus 5 4s are is 20 plus 6 5s are is 30. Understanding, students? Okay, next. Expected value E of x is equal to, we just have to add all the numbers. When you add all the numbers, it will come to 70. 70/15. Okay, so 5 3s are is 15, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 14/3. It's absolutely fine if we keep the expected value, in the fractions. So our expected value is 14/3. No need to convert into decimal points. 14/3. It was a good sum, students. Pause the video fast and do it. Okay, students, the next question, question number 14 on the board. This is the question. I have just copied the question. Let capital X. We all know what is this capital X. Students, the capital X is random variable always. So let this capital X, which is called as random variable in our words, let random variable capital X denotes sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. When two fair dice are rolled, जब दो डाई को रोल करते हैं, दो डाई को फेंकते हैं, तो जो उनके दो आंसर्स को अगर ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे सम लिखा है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन द टू फेयर डाइस आर रोल्ड, दो डाइस को, फॉर एग्जांपल मेरा राइट हैंड में एक डाइस है, मेरा लेफ्ट हैंड में एक डाइस है, दोनों डाइस को मैं रोल किया तो दोनों पे आंसर कुछ ना कुछ आएगा, तो उसके आंसर्स को अगर ऐड करूंगा और जो नंबर आएगा, दैट इज व्हाट कैपिटल एक्स, आर रैंडम वेरिएबल. सो फॉर यू ऑल I have written the sample space. Very frankly, यहाँ इसे ये क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा. अब तक इतना चैप्टर के ये स्टेज पर आपको ओरली आता है, मन में पता है आपको कि 36 होते हैं. We have 36 outcomes over here. N of S, number of elements in the sample space is 36. Hope you all are aware. अगर आपने पुराने वीडियोस देखा है, अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखा है तो आपको समझेगा भी नहीं कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे. 1,1 मीन्स लेफ्ट हैंड वाले डाई पे भी 1 आया, राइट हैंड वाली डाई पे भी 1 आया. 1,4 मतलब लेफ्ट हैंड वाली डाई में 1 आया और राइट हैंड वाली डाई में 4 आया. इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिखा है. ओके, सो 4,4 दोनों में 4 आ सकता है, लाइक दैट. Okay, students, now see here, pay attention. So what will be the capital X? Capital X is the sum of the number obtains. तो मिनिमम सम कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1 + 1 2. मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल जो है कैपिटल एक्स, उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है 2.
बराबर, बिकॉज 1,1 अगर 1 दोनों डाइस पे 1 1 अगर आया तो एडिशन 2 होता है, अगर 1 और 2 आया तो एडिशन 3 होता है, और 2 और 1 आया तो भी एडिशन 3 होता है, तो एक एडिशन 3 भी हो सकता है। उस सिमिलरली अगर 1,3 आया तो एडिशन 4 भी हो सकता है, तो 4 5 6 7 5 भी आएगा, 2 और 3 से 5 आता है, 3 से 6 आता है, 3 + 3 बिकॉज हर बार सम ऐड करना है। और मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास, 6 और 6 अगर आया तो 12 होगा, तो 8 9 10 11 एंड 12, दीज विल बी द वैल्यूज। ओके, 1 नहीं आएगा बिकॉज दो चीज को ऐड करोगे तो 1 कैसे आएगा। So now what I'll be doing it, students, you hope you understood this thing. If you want to copy, you please copy this. Now I'll be erasing the entire stuff from the board. पूछा है find the standard deviation, चाहे expected value पूछा हो या standard deviation पूछा हो, ये फर्स्ट सम हम लोग करें standard deviation का, जो एक ही इंपॉर्टेंट सम है। उसके लिए बेसिक चीज है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। किस पर? प्रोबेबिलिटीज, दीज मैनी प्रोबेबिलिटीज यू हैव टू फाइंड। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितनी है, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये सारे रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स की जो सारी वैल्यूज है, ये हर एक पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। उसके बाद वी विल सी अबाउट स्टैंडर्ड डिवीजन। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज जस्ट पॉज द वीडियो, कॉपी व्हाटएवर यू वांट, कॉपी दिस इन द सैंपल स्पेस। Okay, this can be the part of the question also, but if you don't write then nobody will deduct any marks. If you write, it's good, the sample space of this question. Just copy down this fast, okay, and please pause the video right now. Okay students, what I have done, I want to find probability, right? This is the best way to find the probability. कोई नई मेथड, कोई नया कंसेप्ट नहीं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। और ये क्या है, ये रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज है, 12th तक आएगी, बट आई डोंट हैव प्लेस, आई हैव नॉट इरेज दिस, जबकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बट आई हैव नॉट इरेज दिस। एक और रो आएगी नीचे जिसपे 12 होगा, बिकॉज अभी हम लोग ने देखा कि कैपिटल एक्स क्या डिनोट करता है, सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आएगा। सो आफ्टरवर्ड्स यहाँ 11 पे पहुंच के आई विल इरेज दिस एंड आई एड द रो फॉर 12। ओके, लेट्स डू इट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ अगर सम 2 आएगा, सम 2 चाहिए अगर हमारे को समेशन, तो अगर समेशन 2 चाहिए तो ये एक ही क्वालिफाई होगा 1,1, तो दिस विल बी 1,1। एक ही आदमी है, एक ही बंदा है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक है, एक अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल कितना है 36, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/36। ओके, सम 3 आना चाहिए, तो सम 3 कभी कभी आएगा 1,2 में भी आ सकता है, लेट मी राइट 1,2 में आ सकता है, उल्टा भी करने का हमेशा, दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। 1,2 तो 2,1 में भी आएगा, और किसी टाइम चांस है कि समेशन 3 आए, नो नॉट पॉसिबल, तो 2 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, 2 है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/36, लाइक दिस। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट 4, समेशन 4 कभी कभी आएगा, 1,1 में तो नहीं आएगा, 2 होता है, 1 + 2 में 3 होता है, 1,3 सी दिस, 1,3 में 1 + 3 4 होता है, उल्टा भी करने का 3,1 में भी आएगा, बिकॉज 3,1 यहाँ है। और कभी आता है, कहना इसे 2,2 में आएगा, और इफ यू अंडरस्टैंडिंग 2,2 में भी आएगा 4, और कभी आता है नो दैट्स इट। सो 1 2 3, सो 3/36। नेक्स्ट 5 कभी आएगा, 5 1,4 में आएगा, 1,4 तो उल्टा भी करके देखने का, 4,1 में भी आएगा 5। कहना इसे 2,3 में भी 5 आता है, तो उल्टा उसका हो जाएगा 3,2 में भी आएगा। एनीथिंग एल्स, नो। सो एडिशन 5 कभी आएगा, तो 1 2 3 4, so it's 4/36. Now see, you must have judged the sequence probability की, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, चलते ही रहेगा ऐसा, बट ये सब दिखाना पड़ेगा, it is we cannot do directly. Okay, now sum 6 कभी आएगा, 6 कभी आएगा, sum 1,5 में आएगा, 1 + 5 6 होता है, सिमिलरली 5,1 में भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6 चाहिए, तो कहना इसे 2,4। सी आई एम नॉट लुकिंग हियर, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने ये लिखा है कि आपको समझे कि किसकी बात हो रही है, देखने की जरूरत नहीं है इसको। 1 + 5 6 होता है, 5 + 1 6 होता है, 2,4 तो 4,2 भी आ जाएगा, 4,2 भी आ जाएगा। ओके, अभी 3 की बात करो अगर, तो 3,3 में भी 6 होता है। ओके, दैट्स इट, 1 2 3 4 5, तो इट विल बी 5/36। ओके, 7 कभी आता है, 7 समेशन शुड बी 7। ओके, स्टार्टिंग विथ फॉर 7 1,6 में आता है। ओके, 1,6 विल बी 7, राइट। तो उल्टा भी करके देखते हैं, 6,1 भी 7 हो जाता है।
2 के लाइन में 2 और 5, तो 2,5, तो 5,2 भी होगा। ओके 3 वाले में 3 and 4 होता है, 3 and 4, सो 3,4, 3,4 विल बी देयर, तो 4,3 भी हो जाएगा। देन नथिंग लेफ्ट, ऑलरेडी सब कवर हो चुका है। सो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 36। ओके नेक्स्ट 8 कभी आएगा? 1 लास्ट में, 1 वाली लाइन में लास्ट 1 और 6 होता है, जो 7 होता है वो हो गया। 2 और 6 8 होता है, यस। तो 2,6, तो उल्टा करके देखेंगे तो 6,2। 3 वाले में क्या होगा? 3 में 3 and 5 आई थिंक सो, राइट? 3,5, सो 5,3। और 4 में क्या आएगा? 4 में 4,4, 5 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया है, तो 1 2 3 4 5। ओके इस बार सिर्फ 5 आया, 5 अपॉन 36। 1 2 3 4 5 6 तक आया, अब उल्टा चालू हो जाएगा, 5 4 3 2 1, दिस हैपेंस। ओके नेक्स्ट 9 कब आएगा? कैन आई से 2 + 6 8 होता है, 3 and 6 9 होता है, तो 3,6, तो 6,3 भी 9 हो जाएगा। देन 4 के अंदर 4,5 होता है 9, तो 5 and 4 भी हो जाएगा। 6 और 3 तो आ गया, दैट्स इट। तो 4 है, 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी विल बी 4 अपॉन 36। गेटिंग ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट ऑफ कोर्स ये 5 था, ये 6 हुआ, ये 5 4, तो अभी क्या आएगा? 3 अपॉन 36, बट वी हैव टू राइट। 10 में कौन कौन सा होगा? 10 में 4 and 6, तो 6,4 भी हो जाएगा, ठीक है। एंड कैन आई से 5,5 भी होगा, दिस 3, सो 3 अपॉन 36। 11 में क्या आएगा? 5 and 6 becomes 11, 5 and 6 becomes 11, तो उल्टा उसका 6 और 5 भी 11 होगा। 2, तो दिस इज 2 अपॉन 36, 2 अपॉन 36। एंड द लास्ट वन आई विल बी राइटिंग हियर, आई डोंट हैव प्लेस हियर। Summation should be 12. What will be the case? 12 कब आएगा? 12 summation only जब 6,6 होगा, तो 1 upon 36. So students on the board right now you have this sequence. These are the probabilities. Probability मिल गई, एक टाइप का probability distribution मिल गया। जब x की वैल्यू 2 होगी, x is the sum of the numbers, 1 upon 36. So these are the probabilities. Now they have asked us to find the standard deviation. Okay, how to do it we'll see later because I don't have place here. Pause the video please, and you have to do this in this manner only. Do it fast, it's a very good question. Pause the video please. Now students pay attention, you all must be having that table. Now first I am finding expected value ex, then I will find variance, and third we will find the standard deviation. Now I am finding expected value. What's the formula for expected value? Formula is xi into pi. So it's very simple now, I will not be explaining each and everything. See now, formula is xi into pi. So जब x की वैल्यू कौन कौन सी थी हमारे पास? x की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई थी द समेशन के कॉलम में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक थी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज था। तो जब x की वैल्यू 2 थी, तो प्रोबेबिलिटी कितना आया था उसका? 1 अपॉन 36। अंडरस्टैंडिंग? प्लस जब x की वैल्यू 3 थी, तो प्रोबेबिलिटी कितना आया था उसका? 2 अपॉन 36। यू कैन रेफर दैट टेबल, आपने जो नोट किया है। अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? ओके, सो जब x की वैल्यू 2 थी, तो प्रोबेबिलिटी आया था 1 अपॉन 36। तो x की वैल्यू 2, x मल्टीप्लाई बाई x प्रोबेबिलिटी, ये x था और ये इसका प्रोबेबिलिटी, ये x है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, x मल्टीप्लाई बाई p प्लस करने का। सो जब x की वैल्यू 2 थी, तो 1 अपॉन 36 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 36। जब x की वैल्यू हमारी 4 हुई थी, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आई थी 3 अपॉन 36। लाइक दिस यू हैव टू ऐड, कीप ऑन राइटिंग, जब तक कहाँ तक आएगा? जब x की वैल्यू 12 हो जाएगी। प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट प्लीज। सी स्टूडेंट्स, लाइक दिस आई हैव रिटन एवरीथिंग। लास्ट वाला 12 था जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 36 आई थी, लाइक दिस। नाउ हाउ टू डू इट? डोंट डू द कैंसलेशन। सी, वी कैन सी 1 upon 36 in each of the terms. Yes, 1 upon 36 also you can say, or 36 we can see in each of the terms. So I am removing 1 upon 36 common. 1 upon 36 कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर यहाँ से 1 upon 36 कॉमन निकलेगा तो 3 रहेगा और 2 रहेगा, खाली नीचे का 36 निकल जाएगा। सो यहाँ से 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अंडरस्टैंडिंग? प्लस
यहाँ से 1/36 बाहर निकल गया, तो ये 3 और 2 बचा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लाइक दिस. सो लेट्स राइट डायरेक्टली ना. तो ये कितना होगा, 2 1 2, यहाँ से 3 2 6, यहाँ से 4 3 12 प्लस 5 4 20 प्लस 6 5 30 एंड लाइक दिस कीप ऑन एडिंग इट. और लास्ट में विल क्लोज द ब्रैकेट. Okay, do it fast. Now students, I have done so. This 12 ones are 12, 11 twos are 22 and so on. When I add all the numbers, it comes to be 252. 1/36 is outside. When we'll do the cancellation with 2, we'll get as 7. So by this we found out the expected value. Our expected value is 7. Now we'll find the variance. Okay, how to find the variance? We'll do it afterwards. Pause the video please and let's find the variance. Students, now after finding the expected value, which came to be 7, now I'm finding a variance. Already I have explained to you all how to find variance, but then to a revision I have written the formula on the board. Formula to find variance. What's the formula? Formula, capital V is denoted for the variance. Summation of xi square multiplied by pi minus summation of xi pi the whole square. This is the formula. If you closely observe this formula, students, now please see this. What is this? I'm circling it with the black marker. This is summation of xi pi. Students, this is nothing but expected value ex. So within the formula, this complete is a formula for finding variance. So there are two terms in this formula for variance. One is this and other is this. But this term is nothing but the expected value and a square upon it. Don't forget this square. So can I say this value, I have this, that summation of xi pi, which is our expected value, is nothing but 7 in our case. So I just have to put 7 here and a square upon it. But for finding variance, we have one more hurdle to find this, iska value. Okay, so how to find this? It's pretty simple. It's same as as what we have done in the previous board, but only difference is ये xi पे स्क्वायर करना सेम है. अगर यहाँ पे x1 लोगे, पहली वैल्यू x की, तो उसी की कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे किए थे. मगर यहाँ पे हर बार x को स्क्वायर करना पड़ेगा, x की वैल्यू को स्क्वायर करना पड़ेगा. इतना फर्क है. ठीक है. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में. एक साथ में इतनी 3 चीज नहीं पूछी जाएगी. इसका हाफ लेंथ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. But this question is very important conceptually because इसमें सारी चीज पूछी गई है. If you solve this question, that means you are through with this chapter. Okay, so variance तो बाद में find करेंगे. First I'll find the value of this summation of xi square multiplied by p of I. We'll find this. The minimum value of x is what over here? X is the summation of the number on the dice. So what all values was taken by capital X? It was starting from 2, 1, 1, starting from 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and going till 12, right? So at the place of X, this 2 will come, but only difference is the same thing will happen what we did here. जो हम लोग यहाँ की थे वही होगा. पहले हम लोग ने यहाँ पे 2 लिखे थे X की जगह पे और उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि थी कितनी 1/36 वही होगा. बट ओनली डिफरेंस इस पे ये X वाले पे स्क्वायर होगा. तो दिस विल बी 2 का स्क्वायर. ओके, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/36. ओके, नेक्स्ट प्लस 2 के बाद में 3 था. सो 3 मगर इस पे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2/36. 2/36 बाद में प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3/36. लाइक दिस आप करते ही रहोगे ये. ओके, यू ऑल विल डू ऑन. कहाँ तक करोगे? करते ही जाओगे. यहाँ पे 4 आएगा या 4 है तो अभी यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/36. गो यू विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये आप करते रहोगे. लास्ट में क्या बचेगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. तो ये होगा 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई उसकी प्रोबेबिलिटी. इफ यू रिमेंबर लास्ट में फिर उल्टा हो गया था. 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 आया था, 5/36, 6/36 और फिर से रिवर्स ऑर्डर चालू हो गया था 5/36 वैसे पूरा. तो 11 के साथ में था 2/36. 2/36. ओके, प्लस 12 द होल स्क्वायर. आप लोग ये डॉट 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 नहीं डालोगे, आप लोग करोगे बस बिकॉज आई डोंट हैव प्लेस एंड यू ऑल नो हाउ टू कैरी ऑन. दैट्स द रीजन मैं ये कर रहा हूँ. 12 का स्क्वायर ऑफ कोर्स प्लस इन बिटवीन बिकॉज वी हैव समेशन हियर, समेशन
and multiply by its probability 1 upon 36. That's it, students. Okay, now what you will do in the next step? In the next step, which is summation of same thing xi square multiply by pi is equal to, now see everywhere, can I say once again last time की तरह यहाँ भी 1 upon 36 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से 1 upon 36 कॉमन, यहाँ से 1 upon 36 कॉमन, तो ये 2 बचेगा यहाँ पे. सेम थिंग, सो एज ऑफ प्रीवियस 1 अपॉन 36 को कॉमन निकाल देगी 1 अपॉन 36 को, बट लास्ट टाइम सिर्फ यहाँ से 2 बचा था, यहाँ से 3 बचा था, बट यहाँ पे स्क्वायर्स है, वही फर्क है. तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 1 इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 2 इज 18, लाइक दिस यू विल गो ऑन एंड ऑन. 4 का स्क्वायर इज 16, ओके, एंड 16 3 इज 48 प्लस 48, वी ऑल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और लास्ट में ये आएगा. इफ यू वांट आई कैन राइट फॉर यू ऑल द वैल्यूज. इट विल बी 4 प्लस 18 प्लस 48, you will be solving it. 48, then it will be plus 100 plus 180 plus 294 plus 320 plus 324 plus 300 plus 242 plus 144, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. सबके बाहर 1 अपॉन 36 कॉमन है. देखो लास्ट के दो टर्म्स में 12 का स्क्वायर इज 144, 144 1 144 क्योंकि 1 अपॉन 36 बाहर आ गया है. 11 का स्क्वायर इज 120, 121 2 is 242. Understanding, students? Okay, then after this what will happen? After this what will happen, students? Now we'll just add it. We'll add everything. So summation of xi का स्क्वायर multiply by pi is equal to 1 upon 36 is outside. Okay, we'll add all the values 4 plus 18 plus 48 and all. When you will add everything, students, what will be remain, you know, it will be 1974. Okay, and when we'll do the cancellation, last time मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन में आंसर चलता है, बट यहाँ पे क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ये फाइनल आंसर नहीं है वेरिएंस का, ये एक इंटरमीडिएट पार्ट है. इसका हम लोग सिर्फ ये टुकड़ा फाइंड कर रहे हैं, ये वाला इतना. तो इसका हमको डेसिमल में एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ेगा. सो व्हेन यू विल डू द कैंसलेशन यू विल गेट 54.83. So the answer for this circle, this one is 54.83, and this we know it's 7 और ऊपर square तो 49 हो जाएगा. Okay, so let's find, students, the variance. Now I'll be finding the variance. I'll apply the formula. Just see on the board, variance Vx. The formula is summation of xi का square multiply by pi. From this we have to minus summation of xi pi the whole square. तो ये इसका आंसर समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी का आंसर आया है 54.83, राइट. माइनस समेशन ऑफ xi pi वी डिड, दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग ने किया है पिछली बार, तो वो आया है 7 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 49. सो 54.83 माइनस 49, तो 54.83 माइनस 49 इज नथिंग बट 5.83. स्टूडेंट्स 5.83. नाउ प्लीज पे अटेंशन, लिसन हियर केयरफुली. What we did, पूछा था क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन. क्या किए? पहले फाइंड किए प्रोबेबिलिटी हर एक वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल का. सेकंड फाइंड किए एक्सपेक्टेड वैल्यू. थर्ड फाइंड किए वेरिएंस. अब फोर्थ हम लोग अपने गोल पे पहुंचेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर. अंडरस्टैंडिंग? आई वंस अगेन रिपीट, इतना बड़ा सम नहीं आता है, बट ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप क्यों करना? बिकॉज ये सम हो गया मतलब आपको चैप्टर आ गया. अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. All things are connected. First probability, second expected value. फिर वेरिएंस अगर फाइंड करना है तो बिगर एक्सपेक्टेड वैल्यू के नहीं आता, तो वी फाइंड इट आउट expected value, then we find it out variance, and now we will go to standard deviation का formula. It will just take one more line. Please do this all the things. Pause the video and complete it fast, all of you. And आप ये डॉट डॉट नहीं डालोगे, आप पूरा करोगे. Leave proper lines and do it fast. So now students, the formula for standard deviation is square root of variance. Okay, so how much we got as the variance as square root of 5.83. It's a basic method how to find square root. Okay, that we have covered in 8th and 9th standard. Either by that method you can find the square root of this, or with the help of logarithms you can find the square root of this. The answer is 2.41. So this is how we can calculate.
Once again, I'll request you, please do attempt this question, do solve these questions. It will give you a high amount of confidence because it covers the entire chapter, all the concepts from this. Thank you, students.